समटाइम्स बच्चे थोड़े ना ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं कि यार आई एम गोइंग टू ब्रीज थ्रू दिस, या ये लोग को क्या समझता है मैं तो एमबीए कर रहा हूँ। वो भी एक कारण होता है कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज भी नहीं है और इधर ओवर कॉन्फिडेंस भी है। कई बार स्टूडेंट्स डोंट कम ऑन टाइम, 2 बजे का टाइम बोला है, 2:15 2:30 बजे तक पहुंचते हैं। तो व्हाट आर यू डिस्प्लेइंग? ये सब एलिमेंट्री चीज़ें, बट ये चीज़ें भी गलत होती है। तो हमारे यहाँ पे जो रिजेक्शन के कारण थे उसमें से ये 5-7 कारण मुझे ध्यान आए। Okay, first of all, thank you everyone for having me here. I think it's a very important question for everyone to understand, why should we hire you? A simple answer could be, sir, you have a job requirement. I'm looking out for a job, so you hire me. But it's not as easy as that. Obviously, for different skills, for different roles, for different profiles, you need to have different skills. So that's the reason the first thing which comes to the employer's mind is, what are the kind of skills that you have which will, make you employable probably, and which will help those employer to get you onboarded. And what is the kind of value that you are going to add to the overall process of the company. So it is not only crucial that we have some skills which are aligning with the kind of role that we are looking at, but it is also very important that how do we kind of pursue about those particular role. So if I give an example, sir जैसे बता रहे थे भी interview process के बारे में. So to give you a very small thing, probably as soon as you enter into for your interview, so within the first 30 seconds, by looking at you, your personality, how are your grooming skills, the interviewer or the panelist has already made 50% of his mind that whether they should hire you or not. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आपको प्रेजेंट कर रहे हो. बीइंग प्रेजेंटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, डिसिप्लिन, ऑब्वियसली इफ यू आर देयर ऑन टाइम और नॉट. थर्ड, सर बताया था सीवी वाला, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. सीवी में मेजरली आजकल ये होता है कि वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, तो एक किसी का सामने सीवी अच्छे फॉर्मेट को उठा लिया, you put your skills, you put your probably whatever project you have done over there, you put it over there, and you put, without even going through it, you submit the resume. And when the interviewer asks you a question, what you are answering and what you have put on your resume is completely different. So that itself gives the impression ki bhai, you have not done your basic homework, which is, obviously, if as a fresher, if you are joining somebody, if you are joining an organization, so they expect that, that you should be at least well versed with what you are doing. You should be aware that what you are doing. So I think this is very important that we understand कि कोई भी, if you want to be successful in life, there is no shortcut to it. So आपको basically you have to start from zero, and since if I talk about freshers, so we do not have any choice. तो आपको जो भी रोल के लिए आपको इंटरव्यू हो रहा है, जो भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, it is very important that you should be 100% thoroughly informed about it. You should be aware of आप किस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कंपनी के इन एंड आउट सबको पता रहना चाहिए. If you are appearing for a sales interview, you should be aware of what is sales all about. If you are appearing for some financial or BFSI interview, you should be aware कि technical terms क्या है, finance से related, and all of those things. Just probably कल interview है, आज सुबह उठ के आप चले गए, तो it's not going to work that way. So if you want that probably the employer should hire you, then obviously you need to kind of ensure that that you are having all of those skills, which when you get hired with the organization, you are going to add a lot of value to their overall entire and recruitment process. Thank you. A very good morning to all of you. First of all, looking at the age of the crowd, I would like to wish a very, very happy Valentine week to all of you. Okay? मेरे ख्याल से कल रोज डे था. आज मेरी वाइफ मुझे कह रही थी कि प्रॉमिस डे है, जो तुम कभी नहीं निभाते हो. ठीक है? So, coming back to the topic, let me tell you one thing very clearly. Let's ease out the environment of this room. Okay? Tension मत लो. Right? The first question itself is, why I should hire you. ये बहुत जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशानियां चल रही है. लाइफ को हम लोगों ने अभी तक जिया है और इस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर आप लोग अभी अपना एजुकेशन खत्म करके एक नई लाइफ की तरफ एंटर करने वाले हो, जिसको हम लोग कहते हैं पैसा कमाना.
in simple terms, right? That's the main motto of anyone getting into the job or into business, right? Because money is very, very important. So when we are leaving one stage of life and entering into the second stage of life, as my colleagues has already briefed you, you know, they have covered n number of points, and every point is valid. Okay. When you go to an interview, okay, मैं ना थोड़ा theoretical knowledge कम दूंगा, sir. I am extremely sorry for that. Okay. You are here for that only, Because sir. I am practically, yeah, because I am practically involved into the interview process. I mean, 3 days back we were into Sinhagad Institute of Management to recruit the candidates. Okay. Before that we were into Pumba. So I will give you a practical approach. Okay. You do not have experience. You have experience of life. Okay. You do not have work experience. So what is the thing wherein the interviewer will check you about? Is your CV, as sir has rightly mentioned, right? If you are facing down an interview with some kind of work experience which is aligned with the interviewer, what he is seeking to, then he will question you about your practical work experience, right? But now, at present, at the given situation, you are entering into the corporate world or into the business scenario. So you are fresher. You do not have any kind of work experience. So what interviewer will look into is obviously your CV, right? He will not try to frame out the questions outside your CV, right? So as sir has rightly mentioned that your CV needs to be clean, clear, and it needs to be communicable. Okay? इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए कि आप सीवी के थ्रू क्या कहना चाहते हो. अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा सीवी में क्या डालें? हमारा नाम डालेंगे, हमारे पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डालेंगे, हमारे फैमिली डिटेल्स डालेंगे, हमारा जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स कुछ किया है उसके बारे में डालेंगे, एंड हमारे कुछ पर्सनल ट्रेड्स डालेंगे, लाइक हॉबीज डालेंगे. यस, that is where the question will come into, right? Just for an example, in a particular CV, sir please मुझे रोकिएगा अगर if I'm taking time, okay? क्योंकि वो फ्लो में हमारी आदत है ना, कविश्वर सर के स्टूडेंट रह चुके हम, छोड़ते नहीं है, right? तो when you come down to CV, एक सिंपल सा लाइन होता है, उसमें एक वर्ड आप डालते हो या डिटेल्स डालते हो, हॉबी, राइट? कोई डालता है क्रिकेट, कोई डालता है फुटबॉल, कोई डालता है स्पोर्ट्स. नाउ इंटरव्यूअर विल कैच यू ऑन दोस. इफ you are really fond of cricket, if cricket is really a passion of yours, then put cricket, or for that matter any particular thing, because I said you do not have experience, work experience. वो CV में ही से पकड़ेगा आपको. क्वेश्चंस जो आपको पुट अप करेंगे वो CV में से पकड़ेंगे. अब हम लोगों के लिए बहुत कैजुअल होता है हॉबीज डालना, हम लोग बहुत कैजुअली डाल देते हैं, राइट? बट इंटरव्यूअर क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसने CV में जो चीज लिखा है, हाउ डेडिकेटेड ही इज फॉर हिज हॉबीज, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इज ही पैशनेट अबाउट हिज हॉबीज? और यकीन मानिए अगर वो कुछ भी डिटेल्स डाल रहे हो तो प्लीज तैयारी करके जाइए, राइट? मैं तो कहता हूं वैसा कहना नहीं चाहिए. अगर नहीं भी है लेकिन किसी चीज का बहुत अच्छा नॉलेज है तो डालो. हर जगह पर हरिश्चंद्र बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, राइट? I mean, I am side you, okay? Might be this will not get published, but I want to give a very practical experience to all of you, right? ऐसा कोई भी चीज CV में मत डालिएगा जहां पर आपका हाफ नॉलेज हो, जहां पर आपको इंटरव्यूअर ग्रिल करेगा, राइट? अगर आपने क्रिकेट डाला, फुटबॉल डाला, स्पोर्ट्स डाला, सिंगिंग डाला, कुछ भी डाला, तो you need to be particular, you need to have detailed knowledge about that subject then, right? So choose the content of the CV very properly. For example, when I was facing the interviews during my
after my MBA. I completed my MBA from 2004. So I was going through this process, and Google is the best teacher. Please go and type what are the best techniques to crack the interview. Google आपको 10 आंसर्स दे देगा, right? उसमें से पिक आउट करिए क्या बेस्ट हो सकता है, प्रैक्टिस करिए एंड देन गिव इट. सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, मैंने मेरे सीवी में लिखा ड्राइविंग इज माय हॉबी. पूछ तेरे को क्या पूछना है, राइट? गोइंग टू जंगल इज माय हॉबी, वाइल्ड लाइफ, पूछ तेरे को क्या पूछना है, राइट? सो प्लीज टेक दिस इनटू कंसिडरेशंस. ओके, sorry. So that's a wonderful input from all of you. I believe we will try to moderate every question once it is discussed. So the crux which comes in from the first question, that what is the reason why students fail to get over the recruitment process, I believe the basics are missing sometimes. And you talk about basic skills, basic CV writing, and I believe kya galti hoti hai, even I being a TPO in my college, I understand that students feel the CV to hame pata hi hai. They don't focus on refining it, and you actually go on submitting a small biodata of yours, kind of, and give it to the recruitment agency or the employer. Really well was that whatever you put in the CV, every single word should be well thought about. Otherwise, you write, as he said very clearly, cricket, and then the employer will of course grill you there. That won't be a good thing for you, good situation for you. मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जी. सर ने बोला कि हरिश्चंद्र मत बनो इज़ फाइन, बट हरिश्चंद्र बनना पड़ेगा. अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट आपको गूगली आएगा, दूसरा आएगा, और वो खेलने का ताकत होना. नहीं तो झूठ मत बोलो. इट इज़ बेटर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि झूठ बोलने पर गलती पकड़ी गई तो यू आर आउट. क्योंकि अगर आपने एक झूठ, पहला तो आपने झूठ बोला और झूठ भी बोला, और आप इतने भी पगले हो, इतने गधे हो कि उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है. तो यू हैव टू बी स्मार्ट व्हेन यू आर सेइंग एनीथिंग व्हिच इज बॉर्डर लाइन ग्रे. तो मेक श्योर दैट करो ही ना, करो तो फिर पक्का करो अच्छे से. रंजीत जी, आई बिलीव आपकी ये बात सुन के एक चीज़ याद आ गई कि जो बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है, स्पेशली हमारी आंखें जो होती है, वो आपने बड़ों से सुना होगा, वो झूठ नहीं कह सकती. तो किसी ने कहा था, कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़बां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, राइट? So what best you go. I know it's a student session, sir, kindly permit me for certain things, because students का session है, मन बना के रखना होता है. Thank you, sir. But I will need your inputs at the end from the dais, of course. एक चीज़, one of the reasons why people get students or freshers get rejected is they have unrealistic salary expectations also. आपको कुछ भी आता नहीं है, मैंने तो आपको additional पैसे चार्ज करने चाहिए सिखाने के लिए. Sir, I will interrupt you. I will put up a second question in this context only, as you have already started. What should be the expectation of a fresher of his first salary, first job he is joining, and what should be the expectation of the fresher in terms of his remuneration or salary? I think first sir should go in, because Naukri has the best experience of talking about that. Okay, so basically, if I talk about salary expectation, so obviously it varies from industry to industry, it varies from roles to roles. But still, एक जो major problem, which even the employers, when we go to meet them, what we face is, whenever they're reaching out to a candidate, maybe a fresher or lateral somebody, सबसे पहले जो question आता है, job role, क्या profile है, company क्या है, nobody asks that. The first question which comes is, sir, CTC कितना है, salary कितना है? So I think obviously salary is very important. That is the underlying factor and the motive for everybody, every one of us, for us who are here to kind of think on. But अब क्योंकि जब हम लोग जब एक fresher perspective से बात करते हैं, so it is very important, that we also understand that what is it that we have to offer to the company. So salary, आपको ये भी देखना पड़ेगा सैलरी के साथ साथ में कि उसके अलावा भी आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है. What are the learning opportunities for you? How is the company, which probably you are planning to join? Is that a company's industry? Other platform wherein you can go, you can do a research about the salary. So there's a platform called ambitionbox.com.
आप वहाँ पे जाके किसी भी कंपनी में यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वहाँ के पूरे उनके सैलरी, हर एक पर्टिकुलर रोल के लिए कितना सैलरी उनका बैंडविड्थ है, कितना सैलरी देते हैं, क्या CTC है, वो पूरी चीज़ आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाती है. So I think basis that you have, and obviously you have to be very realistic in terms of quoting your salary. यानी कि आप फ्रेशर हो, आप बोलेंगे सर मुझे 5 लाख 10 लाख का पैकेज चाहिए, एंड ऑब्वियसली यू नो अब उस तरह से वो डिमांड है उस पर्टिकुलर स्किल का आपके पास में जो है, इज इट रियली यू नो प्रॉब्ली justifiable, then it makes sense. Otherwise I'll particularly say there's you know obviously the salary is something that should be the last thing that should be discussed. If you are very satisfied with the kind of the role that you're getting, if you're satisfied with the kind of the employer, बाकी सब चीज़ आपकी मैच हो रही है, then salary could be the last thing. अब थोड़ा compromise भी करना पड़ता है, since you are beginning your career there, you आप थोड़ा compromise करके start कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे employees because of this thing, बहुत सारे employees का आजकल ऐसा mindset हो गया है कि वो ज़्यादा prefer नहीं करते freshers को लेना. What they think is, you know, if we get a candidate who is having 1 or 2 years experience, he could be a really productive resource for us from the day one when he is joining us. तो हमको उसके पीछे training के लिए या बाकी चीज़ें सिखाने के लिए हमको उसके पीछे, you know, we don't have to spend a lot of time and efforts and money also over there. So basically, I think आपको salary wise, obviously that should be justifiable, but आपको that should be the last factor that should come to your mind. After आपने बाकी सब चीज़ें अब explore कर ली, आपको लग रहा है बाकी सब चीज़ें ठीक है, then थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज. आई थिंक दैट इज़ वॉट समथिंग यू शुड डू, एंड यू शुड काइंड ऑफ रियली गो अहेड एंड यू नो probably make up your mind to join that organization. Thank you. I just want to add to what sir said. Okay, salary, very important. Money, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन यकीन मानो बहुत कुछ खरीद सकता है. ठीक है, but you just need to give a thought कि where you are, you know, what are you going to give to the company for first 6 months. यहाँ पर सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, लायबिलिटी एंड बिलीव मी, आई शुड नॉट यूज दैट टर्म, बट बिलीव मी, प्रैक्टिकली फॉर फर्स्ट 6 months यू आर ऑन द लायबिलिटी साइड, बिकॉज यू आर टेकिंग फ्रॉम द कंपनी. सीख रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, और साला पगार भी ले रहे हो, राइट? सो यू नीड टू गेट इनटू अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कि व्हाट शुड आई डिमांड. नाउ एवरी कंपनी, जैसे सर ने कहा, आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हो, वेबसाइट्स पर सर्फ कर सकते हो. वेबसाइट्स पर आई डोंट नो, आई मीन आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दो साइट्स कि आपको हर एक कंपनी में ना एक इंटरनल बैंड्स होते हैं. एक होता है रूल्स और कंपनी के इंटरनल बैंड्स होते हैं, ग्रेड्स जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में 4C 4B 4A इंटरनल ग्रेड्स है, रोल एक ही है, 3B लेवल तक रोल एक ही है, राइट? बट ग्रेड्स अलग अलग है. अगर आप ये पता कर सकते हो किसी भी सोर्सेस के थ्रू कि आप किस ग्रेड पर अप्लाई कर रहे हो, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि अगर शायद जिस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो वहां पर आपको कोई पहचान का है, या इंटरव्यूअर से भी सवाल करके समय पूछ सकते हो बिफोर द CTC कम्स पार्ट कि व्हाट इज द ग्रेड wherein I will be entering into, right? And what is the average remuneration of this grade? You can definitely ask that question if you are not able to get the prior information from any of the sources. यकीन मानो, आपके पास सोना चांदी लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप अगर उस ग्रेड में हो तो आपको उस ग्रेड की एवरेज सैलरी ही मिलने वाली है, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग आउट विथ एनी डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू आर फ्रेशर्स. तो आपको ग्रेड के ऊपर में कोई भी वो सैलरी ऑफर नहीं करेगा, राइट? एंड एज राइटली सेड, इट्स इनटू एन इनिशियल स्टेज भाई लाइफ के. यू आर जस्ट एंटरिंग, यू आर लर्निंग एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. So don't think about money at the initial stage. Money will follow you with time and experience. Believe me. Thank you. एक तो डिमांड सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है जॉब में. फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक टू 2020 और 2021. सडनली क्या हुआ, आउटसोर्सिंग का काम बहुत बढ़ गया, IT कंपनीज को बहुत ज़्यादा लोग चाहिए थे. तो फ्रेशर सैलरी जो 2.5 3.5 के रेंज में थी,
दैट जंप टू 6, 7, 9 lakhs. बट मतलब फ्रेशर को 9 लाख रुपए मिल रहे थे क्योंकि सडनली कंपनीज को बहुत डिमांड आ गई. बट ये लोग, पार्डन माई यूज ऑफ द वर्ड, औकात उन बच्चों की नहीं थी 9 लाख की. तो एक साल 9 लाख मिला, लेकिन अगला साल हुआ तो ये 9 लाख वालों को धीरे धीरे फेस आउट कर दिया और कंपनियों ने वापस 3 लाख वाले बच्चे ले लिए. इसमें दो चीज है. एक कि 9 लाख वाला बच्चा 9 लाख का डिलीवरी नहीं दे रहा था. मोटे तौर पे आप ये समझिए कि आपको 5 टाइम्स आपके कॉस्ट टू कंपनी का डिलीवर करना है कंपनी को. मतलब 9 लाख की पगार है तो कम से कम 45 लाख रुपए का काम करना है. कंपनी के लिए 45 लाख रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए, तब जाके आपके 9 लाख जस्टिफाई होते हैं. तो आप फ्रेशर हो, आपकी 3 लाख का वैल्यू है, मतलब आप 15 लाख का काम कर सकते हो, ऐसा उम्मीद है, अभी गारंटी नहीं है. तो होगा क्या, 9 लाख का स्टार्ट मिल भी गया तो एक साल बाद यू विल हैव टू गो बैक टू 4 lakhs. बिकॉज आप 3 लाख से 4 लाख पे जाते थे तो 9 से 4 आना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट इनिशियली कम पगार मिलना अच्छा है अगर आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है. डोंट इग्नोर द वैल्यू ऑफ लर्निंग, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, एज अ ओनर एम्प्लॉयर, आई कैन टेल यू कि इट हर्ट्स जब मैं पहले साल पगार देता हूँ और मुझे मालूम है कि रोज इसको जो मैं पगार दे रहा हूँ ये पैसे मेरे वेस्ट हो रहे हैं. क्योंकि ये तो कोई आपने मेरे कंपनी के साथ शादी तो की नहीं है कि आप 25 साल यहाँ काम करोगे. तो क्या मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं और पैसे भी दूं. तो आप कॉलेज में पैसे देते हैं ना सीखने के लिए, तो आपने तो मुझे पैसे देने चाहिए सीखने के लिए. आपको आता कुछ भी नहीं है. अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने काम किया है, जैसे मेरे यहाँ पे या किसी यहाँ पे 4 घंटा जाके, जब आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो 4 घंटा जाके काम कर रहे हैं, तो मेरे इंडस्ट्री का रेलेवेंट आप कुछ कर रहे हैं, तो आई एम गेटिंग सम वैल्यू, आई विल बी वेरी हैप्पी टू पे. बट आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको हाथ पकड़ के ABCD सिखा रहा हूँ और आप बोलते हैं कि मुझे 25,000 रुपया दो, तो बॉस मैं दे तो दूंगा लेकिन बहुत दर्द के साथ दूंगा. आप सोचिए आप देंगे क्या? आप नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे दूंगा? तो सैलरी एक्सपेक्टेशन का जो सवाल है ना, ये इसके पहले मेरी क्या औकात है, व्हाट इज दैट आई एम डिलीवरिंग फॉर द एम्प्लॉयर एंड आई एम ब्रिंगिंग वैल्यू ऑन द टेबल. बाय वैल्यू मैं 1 रुपये ले जा रहा हूं तो मैं 5 रुपये 10 रुपये का काम कर रहा हूं क्या, कि मैं एक्स्ट्रा क्या करने को तैयार हूं, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रेशर्स हो तो. सर बहुत अच्छा पॉइंट का डिस्कशन हुआ. द वर्ड रियलिस्टिक और हिंदी का जो एक बहुत सुंदर वर्ड है जो मिस इंटरप्रेट होता है कई बार, औकात, आई बिलीव इज अ करेक्ट वर्ड इफ यू अंडरस्टैंड इट इन अ पॉजिटिव सेंस. तो यस, यू शुड नो योर रियलिस्टिक वैल्यू और उस हिसाब से ऑफ कोर्स आपने सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है. सर ने जैसे कि कहा कि देयर आर वेबसाइट्स एंड डिफरेंट लिटरेचर्स अवेलेबल वेयर यू कैन गेट इन द इंफॉर्मेशन बिफोर यू एंटर इनटू जॉब इंटरव्यू एज टू व्हाट इज द रेंज you can expect in a job role. However, I would like to add one point here, as sir said, that you should also be on the other side. If you are confident enough, if you have gained a good skill set, you are confident enough, you should also have the courage to ask for more. Because sometimes it has also happened that a good student who is really fantastic comes up with a deal with the company which is a very, very non-lucrative for him. He should have been given more, I believe. So But depends on the situation. काउंटर साइड बताता हूँ जी. अगर आप थोड़े भी डिसेंट हो, ग्रेट नहीं हो, मैं तो डिसेंट बोल रहा हूँ, बेसिक के ऊपर हो, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको अनलिमिटेड पैसा देने को तैयार है आपके औकात के अनुसार. मतलब जस्ट बिकॉज आई हैव हायर्ड यू एट लेट्स से 3 lakhs, बट आई सी दैट इन 6 months टाइम you are delivering value of 10 lakhs. Everybody wants good people. ये सारा धंधा जितना चलता है वो लोगों के भरोसे चलता है, और लोग अच्छे हैं तो उनको पैसे की कमी नहीं होगी. एक हाथ मतलब रोहित माइट बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, बट मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 9 एम्प्लॉयर विल बी हैप्पी अगर आप 3 लाख के पगार पे हो और आप 10 लाख वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, तो आपको पगार 10 लाख करने के लिए लोग तैयार रहेंगे. कोई अच्छे लोगों को जाने नहीं देना चाहता, ये याद रखिए. अच्छे लोग का बहुत डिमांड है, आप अच्छे हैं कि नहीं आपको देखना है. So yes, I think that ground level जो सर बोल रहे that is very correct. So
obviously when you join 6 months तक क्या आप deliver करते हो, obviously आपको नहीं पता चलेगा आपके अगर जो employer जो आगे वाले जिसने आपको hire किया है, they'll get to understand your value and आपके बिना बोले ही हो सकता है कि आपको खुद ही आपका जो भी salary package पे आपको hire किया है, they will revise it or probably या तो आपको कुछ additional value in terms of remuneration, in terms of some additional benefit bonus, they'll definitely kind of give you because they also want to retain and have good people क्योंकि आज के टाइम पे it is very difficult to get good people working with the company. बहुत ज़्यादा लोग ground level पे they are facing challenges in terms of getting good resources. So definitely yes, यानी कि एक सबसे बड़ा important factor है कि आप क्या value provide करते हैं आपकी company में जहाँ पे आप join करते हैं. That is very important that what is the kind of value you are adding over there. एक बार यदि आप वो सब चीज़ें सही आ जाती है तो आपको remuneration, salary की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं. Automatically things will start falling in place. आपका salary hike हर बार appraisal में everything you are going to go from zero to whatever you want to, but then आपके level पे भी आपको वो चीज़ें करना ज़रूरी है. What you are expected to do as a as a entry level employee or as a fresher when you're joining the company. अब मेरा भी प्रॉब्लम समझिए ना, मुझे भी ग्रो करने के लिए लोग चाहिए और अच्छे लोग मिल गए तो मैं जाने नहीं दूंगा थोड़े से पैसे के लिए, बट अच्छा होना जरूरी है. डोंट मिस दैट. पैसे आई डोंट थिंक विल बी अ मैटर for anybody if you are doing good work. Yeah, it's said in the HR language, it's very difficult to find good candidates or good employees. And if you find them, it's equally difficult to retain them. Yes. It's equally difficult because everyone would like to have a good employee, I believe. So in the context of this, we will continue. Sir, we have introduced National Education Policy 2020 in the university for last 2 years in the PG and this recently in this year for the UG classes. There are few students here, some of the students from PG, I believe, who are already undergoing a concept of on-job training, apprenticeship or internship or research project. And as we were talking about the realistic approach of bargaining for the salary, I believe if the students, I believe the students are getting a platform through the NEP and these OJT and internships and all these to keep themselves ready before they actually go for a bargain, because apprenticeships and internships may not be paid. So what should be the approach of the students when they enter into the field of on-job training specifically? Because it's basically an examination where they get scores. So, but still, what should be their approach? Actually, this is getting aligned with my current role, okay, of being a capability manager. Now, my basic job is to, provide trainings, on-job trainings, offline, online, to the entire sales team, right from the salesmen to the ZSMs. Okay. So, ये जो on-job training का या apprenticeship या projects हम लोग जैसे post graduation में बोलते थे, हम लोगों के sir were very serious whenever it came down to the projects. और believe me, वो उस age में ना उन projects की अहमियत नहीं होती है या उस projects का जो importance आने वाला है आगे में वो उस वक्त पर शायद पता नहीं चलता है, राइट? इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट्स को बहुत लाइटली लेते हैं कि ओके फाइन चल रहा है, या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं अगर ये मेरे प्रोजेक्ट में अगर मेरा नहीं भी हुआ या मैंने इसको लाइटली भी लिया देन टू आई विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड गेट इनटू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन. बट बिलीव मी, this apprenticeships या projects really helps you a lot. Really helps you a lot, provided if you do it on a very, very serious note. Okay. Now, what is the base that I am getting into projects wherein I am getting to learn what the other company is going to offer, what exactly my project is. Actually, I am getting a base for my preparations. Okay. Now, if you do these projects on the job trainings on a very serious note with an aim that it will help you out, to learn, right? And make it as a platform to get into a corporate world. It will also, the projects will also help you down during your final practicals भी होते हैं ना, right? Presentations होते हैं, practicals होते हैं. अगर आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे तरीके से किए हो, बिलीव मी, आपको वहाँ पर स्कोर आसानी से मिल जाएगा. ओके. आई डू रिमेंबर अपना वास्तु विजन हुआ था सर, एंड देन आई वाज
into the E-Caliber India Private Solution Limited company थी, एक ऑटोमोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाती थी. I went into that company. It was a 6 months project. And when I was going through my final presentations, you know, interviewer सामने वाला सवाल पूछ रहा था. And it was on my tip of my tongue. Okay, because I have done that project rigorously, you know, so I knew in and out about that project. That project also helped me out during my first interview of Asian Paints. You know, कि what exactly have you done into your project, because वो project CV में था. और जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि CV में अगर कुछ भी है तो आपका उसका इनर आउट होना मालूम होना जरूरी है, right? So if you are getting an opportunity, treat yourself as blessed, okay? Capitalize on that project, learn, and then move ahead. प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप जो है, जो फ्रेशर है उसके लिए तो सीवी पे लिखने के लिए प्रॉब्लम है ना, कुछ भी लिखने को नहीं है. तो जो इंटर्नशिप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी आप बोल रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड बिजनेस आपको एक्सप्लोर करने को मिल रहा है. तो वो तो बहुत अच्छे से करना ही चाहिए, पॉइंट नंबर 1. और वो काम करते समय क्या करना चाहिए, सर का सवाल था. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपका ऑफिस का टाइम 10 to 6 है तो 10 to 6 में रिस्ट्रिक्ट मत होइए. गो बैक टू द मेन पीपल, टू योर सीनियर्स एंड से कि सर मैं और क्या कर सकता हूँ, आज आपको क्या प्रॉब्लम है जो मैं एडिशनली कर सकता हूँ. वो बोलेंगे कि बेटा तेरे से नहीं होगा. बोले सर मुझे बताइए, लेट मी हेल्प यू. मैं आपके प्रॉब्लम के साथ, आप मुझे छोटा छोटा असाइनमेंट दीजिए, बट दैट विल एक्सपोज यू कि जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ऑन वन साइड. एंड मैं आज एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ एंड आप में से कोई आके मुझे बोलता है कि यार मुझे आपको हेल्प करनी है. मैं बोलूँगा नहीं 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 तेरे से नहीं होगा. आप अगर परसिस्टेंट रहे कि प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प, टू बी ऑफ सम हेल्प, मैं आपका फोटोकॉपी करके दूंगा लेकिन मुझे आप अपने साथ रखिए. तो धीरे धीरे क्या होगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग. और अगर आपको एम्प्लॉय बनना है तो जेन्युइन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो समझना चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ता वो समझना चाहिए. तो वो 10 to 6 वाला माइंडसेट हटा दीजिए. मैं और क्या कर सकता हूँ. मैं वो जो सर बोल रहे थे ना कि वो सीवी में लिखने के लिए जब चीरफाड़ होगी आपकी इंटरव्यू में, तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये काम अच्छे से किया है. और कई बार मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो वो प्रोजेक्ट जो लिखा है वो भी किया नहीं होता, अंदर तो एक्स्ट्रा तो छोड़ ही दीजिए. तो अगर अपन ये एक्स्ट्रा करने का माइंडसेट रखते हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप मेरे पीछे पड़े हो कि मुझे आपको हेल्प करना है, मुझे आप कुछ बताइए, कुछ प्रॉब्लम बताइए, तो दैट इज ऑल्सो टेलिंग मी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू. कि आप परसिवरेंस दिखा रहे हो, आप लर्निंग एबिलिटी दिखा रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं ग्रो करूं, आई एम वांटिंग टू बी ऑफ हेल्प. ये माइंडसेट कि मुझे वैल्यू देना है, मुझे कुछ तो भी अच्छा करना है, ये माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है. और ये माइंडसेट अगर आप मुझे एक्सपोज कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका लाइव इंटरव्यू चल रहा है क्योंकि वो सारे लोग दे वांट टू हायर, but you have to demonstrate that willingness to be of help, willingness to learn. That will make the biggest impact. हेलो, इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. देखिए, whenever it comes down to projects, you know, as I said, never say no. Try to get into different projects. Okay? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमको एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है. राइट? आफ्टर MBA बेसिकली या आफ्टर ग्रेजुएशन हालत ऐसी हो जाती है, वो एक लड़का होता है ना जो बहुत कोशिश करने के बाद कोई पटता नहीं है, तो फिर उसको ये भी चलती वो भी चलती वो भी चलती वो भी चलती. राइट? जो मिले वो चल जाती है. राइट? जिसने पहले हाँ बोला. ओके? सो आपका एक पर्सनल ट्रेट है, आप एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो. राइट? हो सकता है कि किसी चीज में आप अच्छे हो, किसी चीज में नहीं हो,
लेकिन आपको कब पता चलेगा कि आप अच्छे हो नहीं हो? जब आप उसको फेस करोगे, राइट? तो हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आप जब जा रहे हो, माइट बी इट वुड बी डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट, जहां पर 1-to-1 आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है. माइट बी यू फाइंड दैट यू आर वेरी गुड इनटू इट, right? So at least you will come down to know ki what are your practical strengths, right? And what are your practical challenges which you need to work upon. मान लो एक प्रोजेक्ट आपको वापस वही प्रोजेक्ट में डाल दिया गया जहां पर डायरेक्ट सेलिंग है, and you will find that that's not, it's not encouraging you, it's not motivating you, that's not my cup of tea. And you get into a different project जहां पर टीम वर्क है, right? So you will come down to know, I'm liking this project because it's getting matched with my personal traits. I like to work within the team, so I am a team member. So it will help you out to, to prioritize where you want to enter into the corporate world, which companies you want to enter into, right? Which sectors you want to enter into. So keep these also in mind. एक चीज़ अभी बात करते करते मुझे ध्यान आई कि हमारे पास जितने लोगों ने इंटर्नशिप करी है, nobody has ever come back and said कि give me one more internship. एक महीना 2 महीना किया, चले गए, and they are struggling. What they should have done is कि बॉस सर मैंने कुछ सीखा है, I want to do something more. Give me some opportunity to do something else. तो उससे क्या हो जाएगा, एक धीरे 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 अगर वो 1 साल लगा रहेगा ना, तो वो अपने आप मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट कर देगा कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है या ये बंदी अच्छी है, इसको ये काम दे दे. 6 महीने 9 महीने में तो आदत पड़ जाएगी कि यार रोहित प्लीज ये काम कर दे यार, तू बहुत अच्छे से करता है, तू बहुत ये, बट ये कोई करता ही नहीं है. यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अनदर इंटर्नशिप, whereas you can approach the same employer for another internship. Simple thing, low hanging fruit, लेकिन तो कोई टाइप ही नहीं करता. सोचिए इसके बारे में. I believe yesterday also there was a panel discussion with the Board of Studies members. Kavish Versa was moderating the session, and there was a very relevant suggestion which came up that the OJTs and the projects and all practicals should be evaluated not by the academia but by the industry. And I'm so happy to tell you, sir, that sir has already been proactive on this. Already we have in place a good rubrics to evaluate the projects as well as the OJTs and all that. But not only that, but we are also allowed for the first time from the university side to bring in experts like you to evaluate our practical projects. So I will request you from here that what we have made as rubrics, पहले अब तक ऐसा हुआ है कई जगह, should not say, but it's a fact that people from the academia will go to a college as evaluators, external examiners, 100 में से 90 देख के आ गए, बच्चा खुश, project report बच्चे को पता नहीं है क्या हो रही है. And as rightly said by the panel, yes, that project is actually a stepping stone for you to get a good opportunity in future. So that what intention which you have already built up, I believe all the faculty members, हमने एक कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में rubrics को follow करके ही on job training के projects या research projects बनने चाहिए. We should not avail facilities to students for this. And when the experts from industry will come to evaluate it, I believe that will be the real transparency of a real project. I believe that's what comes out from the questions we were discussing here. एक कुछ टीचर्स भी बैठे, प्रिंसिपल मैडम बैठे, तो एक्चुअली एक चीज़ और की जा सकती है कि instead of sending the students, if those students can be led by a teacher, and अगर वो business के साथ एक teacher के मतलब teacher is an interface and then the student, so the teacher will also get exposure to the real world problems and that will get reflected in the way they teach or they groom their students. That also is a missing gap somewhere many a times. Yes, it is actually relevant because even in the yesterday's panel discussion, one of the experts from the panel was insisting on teachers to get a paid leave to join an organization, himself or herself, because if I'm teaching entrepreneurship development and I've not been an entrepreneur ever, it doesn't make sense.
So it's really interesting, all the points which are coming up. I believe that is And if teachers are getting exposed to these corporate worlds through presentations or through projects, so I believe they will again start loving their profession. It's better not to get into the corporate world, like teaching is the best profession. okay. Corporate world को पकड़ लेते हैं. What are the basic myths which the students have in their mind about the corporate world? What do you feel? Their myths about the corporate world. Can I stand, sir? I mean, if permitted. You can use this. I do not have a habit. Biggest myth of corporate world. Welcome to my company. My company is a family. Don't be under that impression. मैं करीबन 30-40 लोगों को साल भर में इंडक्शंस देता हूँ. Okay, wherein I introduced the company's process, induction process होता है, and then we introduce them. I never say welcome to Ferrero family, because again, this is my personal thought, sir. It might vary. ये मेरा corporate myth है कि any corporate is like a family. Yes, it can give you treatments or facilities, but it will never be a family. जब तक बल्ला चलेगा तब तक आप टिके रहोगे. Particularly, I am restricting myself to sales again. Okay, I was doing very well in my profession. Then I went down to एक health issue हो गया. Right, my company supported me. My MD was very supportive. Right, and I went on to medical leave for 3 months. Now believe me, into corporate world, profession like sales, I was out of sales. I was into capability role, this role itself, and I went down to a mental health issue for 3 months. My MD gave instructions to all my bosses that no one should disturb Pradeep. I came back after 3 months. Then again, as I said, it was a mental state of mind issue. So it again, pumped into. And again, after 2-3 months, I was facing that issue. And I again wanted to get down and work from home. By that time, my MD changed. He got retired. Okay, तो जो sales head थे वो आ गए. हर एक आदमी का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, सोच अलग होती है, राइट? पॉलिसीज अलग होती है. So once the time came down that HR gave me a call, भाई आजा, बहुत हो गया, right? Does this happen in family? If any one of the member goes wrong anywhere, not only about the health issue, anywhere, right? वो पूरी फैमिली पकड़ के रखती है. So that's the biggest myth, I think so, which everyone goes into, that never get into that thought process of being a family. है ना, काम करो, पैसा लो, right? मैंने 3-4 लिस्ट किए हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिग्री मतलब जॉब की गारंटी हो गई, ये मिथ है. डिग्री का मतलब गारंटी नहीं, जॉब मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबको लगता है वो पेपर में ऐड आती है, पेपर में न्यूज़ आती है ना, वहाँ के एम्प्लॉय को 1 करोड़ का स्टार्ट पैकेज मिला, वहाँ का 80 लाख मिला, किसी को 2 करोड़ मिला. नारायण मूर्ति का एक फेमस कोट है. ही सेज इट टेक्स 25 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. इट टेक्स 25 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. तो 50 लाख की पगार पहले दिन नहीं मिलती. वो जर्नी 3, 4, 6, शायद 4 वापस, फिर 8, 15, 12, 25, 40, 50 ऐसा होता है. वो 5, 50, 1 करोड़ लोगों में एक हाथ को मिलेगा, उसकी न्यूज़ बनेगी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है. सो डोंट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट हाई सैलरी हो जाएगी, इंस्टेंट ग्रोथ आ जाएगी. मैंने पहले भी बोला था 9 to 5 या 10 to 6 ये जॉब है मेरा और उसके बाद मेरे को कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं होगा.
यू हैव टू बी विलिंग टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और वो कई लोग को पता ही नहीं होता कि ऐसा करना है. अब अपने को लगता है कॉलेज लाइफ ही डिफिकल्ट है, एक्चुअल डिफिकल्टी तो स्टार्ट होने वाली है पास होने के बाद, ये पता नहीं होता. तो दूसरा, कई बार लोगों को लगता है कि कंपनी में ना बहुत पार्टीज होती है, इवेंट्स होते हैं, वो सब ग्लैमरस होते हैं, बहुत स्टाइलिश लगता है, लोग तैयार होके जा रहे हैं, फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं, इंस्टा पे फोटो डाल रहे हैं, वो सब दैट इज ओनली नॉट इवन 0.1% ऑफ द एंटायर थिंग. उसके पीछे कितना पॉलिटिक्स होता है, जैसा इसने बोला कि फैमिली में भी पॉलिटिक्स होता है तो कंपनी में तो ज़्यादा ही होगा. देर इज़ अ रेस, देर इज़ अ पिरामिड, ऐसा जितना ऊपर जाएंगे उतना रेस बढ़ेगा, लोग कम बनेंगे तो आपको ऊपर जाना है तो 4 लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, उसका क्या होगा. सो इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ, इट्स नॉट ईजी. तो कंपनी में चले गए एक बार तो लाइफ आसान हो गई, ऐसा नहीं होने वाला. कई बार लोगों को लगता है सब लोग हम लोग आपको बताएंगे कि हार्ड वर्क करेंगे तो ऊपर जाएंगे. उसके अलावा आपका पीयर टू पीयर नेटवर्किंग कैसा है, आप आपके एम्प्लॉयज़ के साथ टीम बिल्डिंग कैसे करते हो, आर यू टीम प्लेयर, कि कुछ भी गड़बड़ हो गई, वो तो उसने किया मैंने नहीं किया, ये हुआ तो वो मेरा नहीं था, मेरा तो काम ये था, ऐसा आप करेंगे तो मतलब आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे लेकिन ये बाकी की चीज़ें ठीक नहीं कर रहे तो भी प्रमोशन नहीं मिलेगा. तो ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स है जो लोग मिस कर जाते हैं. कई बार सबको लगता है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल आप आईटी वाला है कोई और वो कोडिंग करना जानता है तो सिर्फ कोडिंग करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है. कोलैबोरेट करना भी आना चाहिए कि ये मतलब प्रोजेक्ट में अगर 5 पार्ट है तो मैं 3rd पार्ट पे काम कर रहा हूँ तो 2nd वाला पार्ट और 4th वाले पार्ट के साथ मुझे लोगों के साथ वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, कोलैबोरेट करना आना चाहिए. तो दोज आर स्किल्स विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो जब आप साथ मिलके प्रोजेक्ट करते हैं तो अपन कॉलेज में तो झगड़ा करके फिर भी कुछ कर लेंगे, वहाँ पे एकदम गड़बड़ हो जाती है. तो वी विल हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन टू दैट. कई बार लगता है कि मैं पास हो गया, एमबीए हो गया तो आई एम नाउ एन एक्सपर्ट. तो वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं लोगों के बोलने में आता है. वहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाती है कि आपने गलती की, यू विल नॉट ओन दैट मिस्टेक. तब क्या होगा, गलती हुई है ये तो मुझे मालूम है, आप मान नहीं रहे कि आपकी गलती होगी और आप किसी और के ऊपर डाल रहे. तो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड से कि बॉस मुझे बताओ मुझे नहीं आता इज अ फार बेटर थिंग देन ब्लफिंग. अगर आप झूठ बोल के ब्लफ करके चले गए एक बार तो नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगे, तो नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली गड़बड़ हो जाएगी. तो बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. But I mean, let's go to the crowd and ask them ki what do they think about the corporates. Okay, there would be some kind of planning which they would have done, or there is something into their mind. Then I think so we will be able to answer it better. We'll go for that session, of course. But I believe during his discussion, Ranjit sir has already given us a few points on what kind of skill sets are required. What is the importance of networking? Of course, that's where I believe I want you to please throw some light on networking skills required and what is the importance of those skills into getting into jobs or these opportunities. So basically, what we were discussing right now is, when you become a team member, you become a manager, so you have a lot of people in your team. So there may be a particular person who is very good as an individual. वो उनको individual आप जो भी काम दो, probably they are doing it great, and they are fantastic at it. But what personally we have also observed is many a times when that same person, he's getting a job as he's getting a profile as a team leader where he needs to manage the team of 2 to 3 people. So he somehow he's not able to kind of deliver और उस type का performance नहीं दे पाते जो individually वो कर पाते हैं. तो अभी sir जो बता रहे थे कि it is very essential for you to have those kind of soft skills जहाँ पे कि आप you work as a team member, you work in a collaborative environment कि बस मैंने मेरा काम कर लिया हो गया तो वैसे से नहीं चलने वाला है. You have to be in a situation wherein you are able to take all of the people along with you. तो जैसे आपका style of working कुछ different होगा, probably people who are working under you, their style of working may be completely different. So you just cannot say कि भाई you have to kind of adapt to my style of working. तो कहीं ना कहीं आके आपको एक midway workout करना पड़ेगा जहाँ पे कि you compromise somewhere, you ask them to compromise somewhere, and you are successfully able to run the show.
यदि आपने बोला कि नहीं भाई दिस इज यू नो हाउ दिस इज माय आइदर माय वे और हाईवे, तो ऑब्वियसली यू नो यू विल नॉट हैव पीपल हु आर वर्किंग अंडर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है वो निकल के चले जाए और उनका भी जो काम है वो आपको ही करना पड़े. So it is very important that you have those collaboration skills. It is very important that you have those kind of team networking, team working skill, जहाँ पे कि आप you know you are able to get the most out of the particular work that you have got to do. इसमें मैं इन दोनों जो बात नहीं बोल रहे वो मैं बताता हूँ इनके बारे में. प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. आई हैव मेट देम टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम. जब प्रदीप अगर जॉब चेंज करता है तो उसके जो चुने हुए अच्छे बंदे थे ना, उनको बोलता भाई आजा आजा आजा. रोहित अगर जॉब चेंज करेगा तो बोलेगा हाँ ए बी सी वो 4 लोग मेरी टीम है, मुझे ये लोग मालूम है ये अच्छे से काम करते. आपको जॉब ढूंढना ही नहीं पड़ता, अच्छे से काम करो. एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग यू टू पिक यू अप. इसको चाहिए अपनी अच्छी टीम, नए जगह जा रहा है तो उसको 4 लोग चाहिए अच्छे अपने. तो बाद में तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग रिलेशनशिप्स पे काम होगा. काम तो आपको करना ही है, काम का काम तो नहीं बच सकते, लेकिन सिर्फ रोहित के लिए मैंने अच्छा काम किया और इसने मुझे इतना बताया था, लेकिन मैंने इतना काम किया, पैसे इतने ही मिले, चलता है. लेकिन नेक्स्ट टाइम रोहित विल रिमेंबर दिस कि ये बंदा अच्छा था, इसको मेरे को लेके जाना है. बराबर है क्या सर? Sir, you are absolutely right. I mean, let me put it into my words. Okay. कभी भी नॉन परफॉर्मर ना बॉस का फेवरेट नहीं होता है, राइट? टीचर्स है यहाँ पर, आप उनको उठा के पूछ लीजिए कि उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन है. The bottom rankers will never be the favorite students, right? And the same applies into the corporate world. Okay. बात स्किल्स की आई है, राइट? सो हम लोग हमेशा एक चीज, मैं एक एग्जांपल से कोट करने की कोशिश करता हूँ कि आप कभी भी स्किल्स से परिपक्व नहीं हो सकते, राइट? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट? एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेज ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव टू शार्पन दैट स्किल्स. ओके. हमारे वो कंपास बॉक्स में शार्पनर होता था, राइट? तो हम लोग उसको शार्प करते थे, फिर लिखते थे, फिर उसकी लेड खत्म हो जाती थी, फिर शार्प करते थे. सो वी नीड टू डू द सेम थिंग, ओके? बिकॉज डिफरेंट रोल्स रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट्स. और एक आदमी में वो सब कुछ होना जरूरी नहीं है, इनिशियल स्टेज पे सब कुछ होना, राइट? बट मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से. When you are into this stage of life where you know ready to get into this corporate world or anything what you can say, you know what matters is the attitude. Now when I say attitude, again this is a very big word. Sir, attitude तो बहुत बड़ा होता है, but मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने आप को तैयार रखो पॉजिटिवली कि ओके फाइन, अगर ये सिचुएशन आई तो आई नीड टू एक्ट दिस, ये सिचुएशन आई तो आई नीड टू एक्ट दिस. चिड़िया होती है, चिड़िया पेड़ पे एक डाल पे जाके बैठ जाती है, राइट? वो चिड़िया हमेशा दूसरे डाल की तरफ देखते रहती है और उसको ऐसा लगता है कि वो दूसरी डाल ज्यादा अच्छी है. वो यहां से उड़ती है, वो दूसरे डाल पे जाके बैठती है, राइट? दूसरे डाल पे जाके बैठने के बाद उसको पता चलता है यहाँ से तो हवा बहुत ज्यादा आ रही है, इस डाल पे पहले वाली डाली अच्छी थी, लेकिन पहले वाले डाल पे जा नहीं सकती है, तो वो दूसरे डाल से उठ के तीसरे डाल पे जाती है. तीसरे डाल पर जाने के बाद पता चलता है कि साला यहाँ पर तो हवा भी आ रही थी, धूप भी आ रही है, पहली वाली अच्छी थी, राइट? कहने का मतलब ये है कि वो चिड़िया डाल चेंज करते रहती है, थक के मर जाती है, थक जाती है, राइट? अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ ताकि हवा आए तो भी मैं सहन कर सकूं, धूप आए तो भी मैं सहन कर सकूं. प्रॉब्लम उस डाल में नहीं है, कमी उस चिड़िया में है, राइट? तो वहां पर हमको स्किल्स पे काम करना है. एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ.
आई वॉज अबाउट 18-19 ईयर्स ओल्ड. मैं सीए करने के लिए, तो सीए में आर्टिकलशिप होती है, तो सीए फाउंडेशन पास हुआ. आजकल तो बहुत क्वांटिटी में लोग पास होते. मैं जब पास हुआ था तो नागपुर में 2 लोग पास हुए थे, तो मैं 2 में से एक था. नहीं, बहुत शाय ना समझता था खुद को. नहीं, रुको 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 रुको, बहुत ऐसा हाई था कि 200 लोग ने एग्जाम दिया, मैं 2 में से हूँ जिसने पास किया. तो आर्टिकलशिप के लिए गया, मैं एकदम छाती चौड़ी करके गया. और वहाँ पे जो पोटेंशियल सीए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, तेरे को क्या आता? बोला सर अभी फाउंडेशन पास करके आया हूँ, 2 लोग पास हुए, मैं उसमें से एक हूँ. अच्छी बात. तो उतने में जो बंदा था उनका ऑफिस का, वो पानी लेके आया. तो एक सीए ऑफिस में पेपर बहुत रहेंगे, तो बहुत पेपर पड़े थे. उसने पानी लेके आया और पानी रखा, और वो मुझे पूछने लगे, और मैं ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, थोड़ा बहुत जवाब दे रहा था. उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, छोटे से छोटे काम में कौशल्य प्राप्त करो. बी द वेरी बेस्ट एट द स्मॉलेस्ट ऑफ जॉब. मैं तो हवे में था ना, मैं क्या समझता अपने को. तो मेरे को बोले जा पानी लेके आ. एक तो मेरे को इट वाज, मैं एकदम ऐसा गुस्से में था कि मैं सीए फाउंडेशन 2 में से एक और पास होके आया हूँ, और ये मुझे पानी लाने का काम दे रहे. गया, पानी लिया, एक ट्रे था, ट्रे ढूंढा ऑफिस में कहाँ रखते, वो किया, सब किया, और पानी लेके आके रखा. अब उन्होंने मुझे 15 मिनट बताया कि मैंने पानी लाने के प्रोसेस में क्या क्या गलती की. सबसे पहले पानी रखना कहाँ. 2 लोग लेफ्टी थे, एक जन राइटी था, तो पानी का ग्लास कहाँ रखा जाएगा, पहला. दूसरा, उन्होंने बोला कि पानी के ग्लास में पानी भरते कितना है, सोचा ही नहीं था कभी. तीसरा, पानी के ग्लास में बाहर से एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए ट्रे के अंदर पानी नहीं गिरा होना चाहिए. पानी देने में इतनी अकल लगती है, मुझे मालूम ही नहीं था. तो जो मैं हवे में था, वो एकदम जमीन पे आ गया. उस दिन से लेकिन मेरा लाइफ चेंज हुआ, क्योंकि देन आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ द जॉब्स कैन बी डन इन द फाइनेस्ट ऑफ द मैनर, एंड यू कैन ऑटोग्राफ एवरी सिंगल थिंग. फॉर एग्जाम्पल, सुशील ने काम किया है, तो ये काम देखने की जरूरत ही नहीं है. ये वाला जो लेवल का कॉन्फिडेंस सामने वाले को आएगा, ये जॉब वो आपकी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे. once you understand that that is the mindset with which you have to work, if that can be adapted, तो छोटा काम हो. मैं तो अपने ऑफिस में आके जो बच्चे आते, उनका तो मैं देखता हूँ कि स्टेपलर पिन कहाँ मारा है. स्टेपलर पिन लोग, ये पेपर है, ये स्टेपलर पिन लोग यहाँ मारते हैं, ऐसा पिन मारेंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो वो फट जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आ गया. ये पेपर ठीक से लगाए नहीं होते. सीवी का स्टेपल ठीक से नहीं किया, 2 पेपर है, 2 पेपर आगे पीछे लगे, कैसे होगा. दैट इज टेलिंग यू मोर अबाउट, आप बोल क्या रहे उसका कोई मतलब नहीं है. अगर ये सीवी ऐसा आया तो रिजेक्ट हो जाएगा. तो ऑटोग्राफ एवरी सिंगल थिंग विच यू आर डूइंग विथ एक्सेलेंस. इट कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स. that is what matters. So I think probably सर जो एक बोल रहे एकदम सही चीज़ है. तो उसमें क्या हो रहा है कि आज की डेट में what we are doing is हम लोग एक पर्टिकुलर स्किल या कुछ हम लोग पर्टिकुलर ट्रेट, यू नो, वी काइंड ऑफ बिकम दैट पर्सन, एंड आप उस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में, आप उस पर्टिकुलर रोल में, डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंस इज, यू नो, वन फाइन डे कंपनी रियलाइजेस कि ठीक है, आपको इस रोल से निकाल कर आपको किसी दूसरे रोल में आप वो पुटअप करे. बट नाउ यू हैव नॉट काइंड ऑफ अडेप्टेड टू दैट न्यू रोल. आपने जो आपको लग रहा था मैंने भाई पहले जो कर लिया है, मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूँ, एंड आई ऑब्वियसली थ्रू आउट माई एंटायर टेन्योर आई विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ वर्क ओनली टू डू. So it's very necessary that you continuously keep upscaling yourself. कि एक चीज़ आ गई और बस हो गया, ऐसा नहीं होगा. You have to continuously learn, unlearn and then relearn things. सिर्फ एक बार कर लिया और हो गया तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आप ये कंपनी में हो,
एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो सकता है कल कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ या कल कोई तीसरी कंपनी में जाओ, तो वो जो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए काम कर रही थी, नॉट नेसेसरी कि सेकंड कंपनी भी वो सब चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, हो सकता है पूरा चीज़ें अपोजिट हो. तो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल, वेरी फ्लेक्सिबल. एंड एक जो लर्निंग वाला पार्ट बताया सर ने कि दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू जस्ट कैन नॉट से एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कि भैया अब मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं बस जो हूँ मैं ही हूँ, बाकी कोई भी नहीं है. तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग थिंग्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स. ऐड करूँ थोड़ा सा. अगेन पर्सनल एग्जांपल, हम लोग 96 97 के पास आउट है ग्रेजुएशन. तो मैं बीकॉम किया तो 96 में, मेरा सारा क्लास इंजीनियरिंग किया तो 97 में पास हुए. अब बाय 2018-19 सब लोग CXO लेवल पे है, मतलब कोई CEO है, कोई CIO है, सब टॉप पोजीशंस पे, हेड, इंडिया हेड, एशिया पैसिफिक हेड. हम में से, हमारे क्लास में से, और हमारा बहुत कनेक्टेड क्लास है 10th स्टैंडर्ड का, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. उसमें से 3 लोग का पगार गया, जॉब गया, 3 लोग की जॉब गई. और 40 लोग जो इंडिया हेड, एशिया हेड, ऐसे पोजीशंस पे बैठे थे, हम लोग ने पूरी ताकत लगा दी. वो 3 लोग में से 2 लोग को हायर वापस नहीं करा पाए, 3 साल नहीं जमा. क्योंकि जो उन्होंने इंजीनियरिंग में 4 साल पढ़ा था, उसके बाद कभी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया. तो वो टाइम चला गया कि जब आप 2 या 4 साल एक बार पढ़ेंगे और 40 साल नौकरी कर लेंगे. आपको हर 2 साल में 4 सिग्निफिकेंट स्किल्स अपग्रेड करने जरूरी है. इट कुड बी आप 4 एडवेंचर कैंप करो, कोई लैंग्वेज सीखो, कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन जरूरी है. वो टाइम चला गया कि 2 साल या 3 साल पढ़ाई किया और 40 साल पैसे खाए. ऐसा नहीं होगा. एक बार आपको एक्स्ट्रा प्रमोशन मिल गया और आप, या आपने एक जॉब स्विच मार दिया, और जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, अगर जॉब काटने हैं तो आखिरी में कौन आया उसको निकालो, क्योंकि वो आखिरी आने वाला व्यक्ति थोड़ा महंगा आता है. वही काम के लिए आपके पास एक आदमी है 20 लाख रुपए पे और नया आदमी आया 25 लाख पे, काम सेम हो रहा है, तो आखिरी वाले को बाहर करेंगे पहला. तो आपका क्योंकि उस कंपनी में नेटवर्क बनने का था. अब क्योंकि आप अब अगर स्किल अपग्रेडेड नहीं है, आप 25 लाख ले रहे हो, लेकिन आपकी औकात 22 की है, यू विल बी कट आउट ऑफ दैट कंपनी. तो बहुत मुश्किल होगी. तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू आर कंटिन्यूसली अपस्किलिंग. एंड आई एम सेइंग, मुझको 4 साल लगे वो 2 बंदों को, और वो 2019 में जो 30 लाख पे पैकेज पे थे, उनको 4 साल बाद 18 लाख के पैकेज पे हम लोग जुगाड़ पानी करके सेट कर पाए. डायरेक्टली सेट नहीं हुए क्योंकि उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम था, एटीट्यूड में प्रॉब्लम था. Sir, I believe you have already answered one of the questions I was supposed to ask, that why are students fired? So one of the, after joining, working for some time, they are fired. One of the pointers which you have already, I believe, answered, so I would like you to throw more light, that why are these students not able to sustain there and the companies are firing them? Harsh word. I think so. It's a mix of everything what we have already said, sir. Okay, fine. I think so. Irrespective of any industry, irrespective of any company, the basic reason and the most prominent reason, और जिस पे कोई compromise नहीं होता है, that is code of ethics. Okay, if you are not following code of ethics of that company, whether it is Posh, yeah, for that matter any other code of ethics, then companies इस situations में कोई compromise नहीं करती है, irrespective of who you are and what is the performance. Okay, if code of ethics gets compromised, you will not be able to save your job. Second thing is what we have rightly discussed. See, हमारा अस्तित्व जिसको हम लोग कहते हैं, right? हमारा existence is into that company only when we are giving back to that company. Okay. Now, if the expectations of the company is X and I am delivering X minus 1, so कहीं ना कहीं वो gap fill होगा, and then pressure will get start on that candidate, you know, to fill, either to raise the performance and reach to that X level. Okay, so performance is again one of the parameter wherein you will be able, I mean, you will be question marked on your existence.
Integrity, again, it's a part of code of ethics. Okay, performance हो गया, integrity हो गया. Many a times, you know, you, as we said that, you know, you are very good into one particular role. Okay, and company has does not have the career progression of your in that line. Okay, उनके पास वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, अभी तुम उस डिपार्टमेंट के हेड बन चुके हो, राइट? अब उससे आगे और क्या है? सो कंपनी वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू मूव डाउन टू योर नेक्स्ट रोल्स. तो वहां पर बहुत जगह पर आप आनाकानी करते हो, इच्छा जाहिर नहीं करते हो, सो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते हो. सो अगेन दैट गोज इन टू अ नेगेटिव वे. यू आर यंग, यू शुड बी मोबाईल. मी नागपूरचा मुलगा, मला नोकरी नागपुरातच हवी आहे, तर तुला नागपूर सारखीच नोकरी मिळेल, राईट? सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, right? You need to be mobile. This is your age wherein you need to go and explore India, whatever they say, wherever they say. तो वो कुछ flexibility parts पर भी फिर कंपनियां कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है. ओके फाइन, यू वांट प्रमोशन बट यू आर नॉट रेडी टू मूव, तो रह भाई फिर जहां पर है, और जहां पर है वहां पर मैं तुझको एक हद तक ही पाल सकता हूं, उसके बाद नहीं पाल सकता हूं, तो फिर ढूंढ ले. सो दिस आर ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स. I believe this is the last question on the panel. Then we'll have some questions from the students. इसका इंसाइट मुझे एक लाइन में मिला था. यू आर हायर्ड फॉर स्किल्स, आप क्या काम करोगे, एंड यू आर फायर्ड फॉर इंटीग्रिटी. हायर्ड फॉर स्किल्स, फायर्ड फॉर इंटीग्रिटी, ये एक पार्ट है. लेकिन बहुत सारे ना लूज कमेंट्स, किसी किसी आदत होती है गप्पे मारते मारते, अबे उसका मालूम है क्या, नहीं चलेगा. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के गाइडलाइंस है. लूजली टॉकिंग अबाउट समबडी, किसी को कोई नाम रखना विच इज़, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है किसी पर्टिकुलर रिलीजन की या कास्ट की, उसके ऊपर का कोई आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में उसको नहीं मालूम, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी और वो दूर तलक जाएगी और लफड़ा होगा. तो हाउ आप लूज कमेंट्स कर रहे हैं क्या? मेरे पर्टिकुलर ऑफिस में एम्प्लॉयज़ अगर क्लाइंट का नाम उसके बाहर आपस में लेने के बाहर कहीं पे भी ले रहे, नाम भी लेना, कितने पैसे है क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है, कि संजय कविश्वर मेरे क्लाइंट है, ये बोलना भी अलाउड नहीं है इतना स्ट्रिक्टली. तो कोई अगर लूज कमेंट्स कर रहा है तो टिकेगा नहीं. तो आपका बहुत कंट्रोल होना चाहिए. तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, आप कैजुअल हो क्या, एम्प्लॉयज़ के साथ आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई आप लूज कमेंट्स कर रहे हैं क्या, ये सब कुछ मैटर करता है. तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एक पॉइंट बहुत बड़ा हो गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप आपका पासवर्ड शेयर करते हैं क्या? अगर आप आपका पासवर्ड शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, होगा ही नहीं. जिस दिन पता चला या जिस दिन मौका मिला आपको वो गोली मार दी जाएगी, यू विल बी किक्ड आउट. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ कैजुअल रह के नहीं चला सकता. उसका उसके साथ लफड़ा चल रहा, ये इसका चालू है, ये सब ऑफिस के अंदर नहीं बात कर सकते, ये अलाउड ही नहीं है. चल सकता है लेकिन बात नहीं कर सकते. हाँ, बात नहीं कर सकते. Good Yes. one. That's a good one. I think it was an insightful discussion on the panel. I'm sure every one of you have enjoyed it thoroughly. Every student was really focused. Before we moderate the session, finalize the session, we'd like to have some questions from the students. Any questions from the students? The mic will come to you. Anyone? We have deliberately not kept some basic questions here on the panel. We expect some questions to come up from the students. So, क्या पूछना चाहते हैं? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी कैसे भी पूछ सकते हैं. Don't worry. From the audience, any questions? Even from teachers? Good afternoon, everyone. This is Anchal Mene, Assistant Professor from GH Raisoni College, and even in ex-TCS. So, sir, my question for my students was that as these all are freshers, so can you guys guide them?
standard resume for freshers में क्या add-on points हम डाल सकते हैं so that it would be good for them to appear for interviews by आप एड ऑन पॉइंट मत डालिए, उनको एड ऑन काम कराइए, जो काम कराएंगे वो लिखिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उनको रगड़िए, उनको आइडियली मेरे हिसाब से 6-8 घंटा 10 घंटा कॉलेज कर रहे हैं, जो दिन में 24 घंटा है, 4 से 6 घंटा कहीं ना कहीं जो भी जिसका फील्ड होगा जाके बोले जो काम करना है कर, लेकिन गो एंड वर्क, बिकॉज ये सारे कोर्सेज बीबीए एमबीए अब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं और बिजनेस ही नहीं देखा तो का मास्टर का क्या, अब डोंट फूल योरसेल्फ, जमीन पे आओ और काम करो, वो जो काम करेंगे वो ईमानदारी से करो, वो लिखो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। To be very particular to your answer, ma'am, let's discuss up. Right? Questions है? क्या होना चाहिए इसमें? for what he or she is applying. Then skills, introduction, proper name on the resume, proper contact details, updated LinkedIn profile, and obviously education background. That's it. That they can update. Right. Yeah. Then there has to be personality, there has to be education background, there has to be some certain kind of contents in terms of specific, if any kind of project has been done, which needs to be highlighted. What is the outcome of that project? जहाँ पर आपको यहाँ पर इंटरव्यूअर को ये समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट करके ये क्या हाईलाइट करना चाह रहा है, राइट? हर एक इंटरव्यूअर उसके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैंडिडेट ढूंढ रहा है, ओके? इसका ये मतलब नहीं है कि जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट किए गए हैं दे वर नॉट गुड, ऐसा नहीं है, ओके? Recently we rejected one of the candidates from Srinagar who was very good, excellent in everything because he has prepared himself for SSB, but he did not got selected in our company. Why? मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है। इसका ये मतलब नहीं वो SSB कैंडिडेट was weak, right? So क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सीवी का कंटेंट कॉमन रहेगा, बट अगेन सर को मद्देनजर रखते हुए ऑनेस्टी बिल्कुल होनी चाहिए, मैं बिल्कुल उसमें ये नहीं कर रहा हूँ, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी वेयर यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, राइट? सी व्हाट द कंपनी इज अबाउट, राइट? थोड़ा मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइबल थिंग व्हिच यू विल बी एबल टू जस्टिफाई करिए। जब मैं मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ, so not with the records, not with the education certificates of percentage, but in terms of what exactly you want to give it to that company. वो कंपनी पेंट इंडस्ट्री वाली है, एक एग्जांपल के तौर पे, if it's sales job, then आपका प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स needs to get aligned to thing, right? ये तो कंपनी X है, आपने प्रोजेक्ट A नहीं किया, तो ज़्यादा लिंक नहीं है बैठ रहा है, neither in terms of skill sets, so it will not add value. Okay? एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एक सीवी बनाया और जैसा न्यूज़पेपर में आप पैम्पलेट बांटते हैं वैसा बांटेंगे तो काम नहीं होगा। वो पैम्पलेट जो भी आप बना रहे हैं उसको थोड़ा कस्टमाइज कीजिए, थोड़ा एफर्ट लीजिए। एक्स कंपनी जैसा इसने बोला ना, पेन कंपनी में आप सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कुछ प्रोजेक्ट किया होगा तो उसको हाईलाइट कीजिए। आई वुड यूज द वर्ड हाईलाइट रादर देन मैनिपुलेट, कि स्मार्टली उस प्रोजेक्ट के अंदर के हाइलाइट्स ऐसे कीजिए कि ओरिएंट कीजिए इस काम के लिए। वो किया जा सकता है, वो पैम्पलेट बांटने वाला सिस्टम मत करो। I believe very valid point that the CV should be customized as per the requirement of the company. I do have another question as well. Yeah. There's one more question from here, I believe. There was a raise of hand. Yes, please take the mic.
Sir, as a normal fresher, what skill we basic needed for the industries we are going for? Before the panel asks you, grooming is most important, and you're here for a panel discussion. मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप ना. पहले तो मैंने आपको बता दिया आपके लिए पर्सनली कि ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना. आप जिस तरीके से आए हैं इस सेशन में, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर ने पहले ही कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जैसे ही वहाँ से आप एंटर करते हो इंटरव्यू देने के लिए 30-40 सेकंड की आपकी जो चाल होती है उसमें डिसाइड हो जाता है कि आपको कितना वैल्यू दी जाए. राइट सर, बाकी स्किल्स के बारे में मैं बोलने वाला था भाई टोपी निकाल दे, ऐसा मत कर. हाँ, या टोपी निकालना भी, अगर अपन धूप में बैठे होते बाहर होते तो सीधी टोपी पहन के बैठता तो तेरा चांस बढ़ रहा है. मतलब छोटी छोटी चीजें. लेकिन तुम्हारा सवाल क्या था कि कैसे प्रिपेयर करना है. सर बेसिक स्किल्स क्या क्या चाहिए? बेसिक स्किल्स तो हमने पिछले 1 घंटे में वही बात की. लेकिन सर उसके अलावा में, यानी जो आपने बताया उसके अलावा जो स्किल्स होती है उसको बेसिक नहीं कहते हैं. सर जैसे एक्सटर्नल स्किल्स जो रहती है, यानी जो कंपनीज की अलग अलग जो स्किल्स रहती है, जैसे कि मैं समझ गया आपका ये क्वेश्चन. courses मैं या समझ ये गया सब मैं बात. समझ गया probably आपका क्वेश्चन. asking about industry specific requirements. स्पेसिफिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्किल सेट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ओके, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ इज टू स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ योर सेल्फ. राइट. अब ये सोच के चलो कि आपने आपकी जेब से पैसा लगाया हुआ है धंधे में. राइट. ये लैंग्वेज आई थिंक सो, आई डोंट नो वेदर क्राउड इज कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज और नॉट, बट आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल वन. आपने आपकी जेब से पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में. अब आप सामने वाले को रिक्रूट कर रहे हो. कैसा कैंडिडेट ढूंढोगे? क्या चाहिए उसमें? सर उसमें थोड़ा बहुत स्किल्स होनी चाहिए. थोड़े बहुत के लिए पैसे देने के लिए रेडी हो आप? सर मैनेजरियल स्किल्स या जो कैपेबल स्किल्स है उसके लिए. अच्छा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? सर बीकॉम. बीकॉम. कौन से ईयर में हो? सर फाइनल ईयर. अच्छा, टैली आता है? सर थोड़ा बहुत आता. थोड़ा बहुत में पैसा नहीं मिलेगा. एक्सेल पे कितना कंफर्टेबल हो? सर मॉडरेट. हाँ, मॉडरेट. थोड़े बहुत को उसने इंग्लिश में बोल दिया मॉडरेट. तो मुझे बता कैसे तुझे जॉब कैसे मिलेगी? तुझे टैली नहीं आती, तुझे एक्सेल नहीं आता. मैं एडवांस्ड एक्सेल भी नहीं बोल रहा हूँ, बट यू शुड से क्या मुझे आता है. तो तू ऐसा डरा डरा बोल रहा है. तो अब तू एक्स्ट्रा स्किल्स की बात कर रहा है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ तू पहले बेसिक तो कर. तू बीकॉम कर रहा है तो बीकॉम के मतलब मैं बोलता हूँ 11वीं 12वीं में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या अगर मैं तेरे को बोलूँ गोल्डन रूल बता तो फट से बता पाएगा? बाकी 2 रूल्स बता. सर नहीं यार. मेरा ऑब्जेक्टिव तुमको एम्बेरस करना नहीं है. कई बार बीइंग गुड एट व्हाट इज द बेसिक इज इनफ. तुम्हारे जो कोर्स के सब्जेक्ट्स है वो तो तूने ईमानदारी से पढ़े हैं क्या? क्योंकि ये क्या है, जब लाइफ आती है ना, लाइफ का जो इंटरव्यू होता है उसमें बीकॉम फाइनल ईयर में सिर्फ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा. यहाँ पे मैं 11वीं का सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, तुझे एकदम से याद नहीं आया तो ये कैसे प्रिपेयर करोगे? तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि 11वीं भी तो ईमानदारी से पढ़ रहा है, 12वीं भी पढ़ रहा है. बीकॉम फर्स्ट ईयर में क्या था? पार्टनरशिप अकाउंट्स था. अब उसको भी आना चाहिए. तो ये सब अब सिंपल काम, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना आता है? अच्छा, टीडीएस के रिटर्न फाइल करना आता है? टीडीएस की प्रोविजंस मालूम है? अभी बजट आया, बजट में क्या चेंज आया टीडीएस में? सर उसमें 8% ये टर्नओवर का वो चेंज हुआ. तू बैचलर ऑफ कॉमर्स बोल रहा है ना खुद को, बीकॉम कर रहा है, तो वो सब क्या क्या आना चाहिए वो तो पता होना चाहिए. अब मैं तो बाहर की एडिशनल स्किल्स की बात ही नहीं कर रहा. जो तेरे सिलेबस के अंदर है वो तो पहले आना चाहिए. हम लोग वहां पे भी लैकिंग हो रहे तो फिर आगे की बात क्यों कर रहे? पहले तो वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो ना. यस सर. My objective is not to embarrass you. You have asked a good question that gave me the most important opportunity कि जो कोर्स कर रहे उसको तो ईमानदारी से करो.
I believe he has asked a question on behalf of a lot of students. Any more questions? Yeah. So I believe we can. One more question? One more question. Yeah. Hello, good afternoon, sir. My name is Yashasvi Gedam. I just want to ask that if a person has a skill and is very adaptable and has a mindset, and there is another person who has a traditional market experience, so which you would like to hire? Very, very interesting question. So there is one person who is good into skills. Yeah. and कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्किल्स फिट हो रहे हैं उस पर्सन में, राइट? Yeah. दिस इज वन पर्सन. द अदर पर्सन इज कि जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, राइट? Yeah. But is not very adaptable, and another person is quite adaptable. So, इंटरव्यूअर को ये पता अगर चल गया yeah. कि he is not adaptable, right? So irrespective of the experience, he will not hire. Okay. That's not the preference, at Okay, least. So they will go with the candidates who is gentle, who is eager to learn, who is adaptable, you know. So functional case से ज़्यादा company behavioral pattern पर भी देखेगी. Again it depends कि किस functions पे या किस grade पे आपको hire कर रहे हैं, Okay. right? Yeah. Above the level, it will be more of a managerial skills, behavioral skills. Below the level, they will try to take more of technical or functional person. Okay? So it depends कि किस stage पे वो hire कर रहे हैं, Okay. right? Yeah. Thanks. Believe no questions. So I would like to first of all close the panel discussion. It was a wonderful, insightful, thoughtful discussion by the industry experts, all of them, Ranjit ji, Rohit ji and Pradeep ji. Impactful points which were discussed. As of now, जो सर ने कहा था एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि आपको अपनी गलती समझ में भी आनी चाहिए और उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए. हम गलती क्या कर देते हैं और हमारी नेटवर्किंग कहाँ मार खा जाती है. जिस इंसान ने हमको क्रिटिसाइज कर दिया, कभी कभी क्रिटिसाइज करने वाला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करता है, अगर हम उसे जान नहीं पाए तो हम उसे इग्नोर करते हैं या उसकी बातों को वजूद नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं. स्किल्स खराब होना शुरू होती है. हम ऐसा हर किसी इंसान के साथ करना शुरू कर देते हैं. I personally feel as a teacher that people who criticize you constructively are really your good friends. So सच बात मान लीजिए कि चेहरे पे धूल है, सच बात मान लीजिए कि चेहरे पे धूल है, आईने पर इल्जाम लगाना बड़ा ही फिजूल है. तो पहले तो आपको ये करना चाहिए. और जो भी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई कि ग्रूमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज यू सी all of them well dressed. Grooming is most important. The minute you enter the interview room, how you carry yourself, how you actually go ahead with your body language, all those points discussed. Of course, industry-specific skills can also be a part of it. You can also discuss with them individually after the session if you want to. But just imagine if you are a pencil. A pencil can perform only when it can sharpen it well. If you sharpen a pencil well, only then the brighter side of the lead will come out. So sharpening your skills, as was discussed, is very important. You have to keep yourself sharpening now and then so that it is painful. Sharpening yourself is not easy. It's painful. But if you go through that pain, तो आप निखर कर बाहर आते हैं, आपकी लिखावट अच्छी होती है. Right? That is what I've learned from my life. As Number 2, personality development की जब बात करती है तो अंदर से पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. वो पेंसिल के अंदर, पेंसिल की जो बाहरी जो अट्रैक्शन है, कलर है, जो भी है, वो तो अच्छा होना ही चाहिए. ग्रूमिंग तो अच्छी होनी चाहिए, बट अंदर से भी आपकी सोच, आपकी समझ साफ सुथरी होनी चाहिए. और लेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंदर जो है. एंड लास्टली, इफ यू आर अ पेंसिल, यू हैव अ फैंटास्टिक एटीट्यूड इनसाइड, आप बाहर से भी अच्छे दिख रहे हैं, आप शार्पनिंग भी कर रहे हैं अपनी, बट एट द सेम टाइम what I personally would like to share with you, that your pencil जब तक अच्छा नहीं कर सकती, जब तक अच्छी लिखावट नहीं कर सकती, जब तक वो अपने आप को किसी सही हाथों में ना सौंप दे. तो you have to understand and find good mentors in your life, good mentors around you. You have to find them in the right time, at the right place, and try to follow their instructions, their support. As I have found one here in the university,
Kavishwar sir. So I believe that is most important. That is where always develop your networking skill. I believe yes. Yeah, he is also there in the same list. So I believe this is what we have taken as a crux. You were a wonderful audience. Thank you so much for understanding it. I will request now Dr. Sanjay Kaveshwar, the Dean of the Commerce and Management Faculty, for his Ashirvachan for 2 minutes at least. Sir, please. A very good afternoon to one and all present over here. Respected panelists and dear friends. एक तो ये आशीर्वचन वगैरह बना के बुढ़ा कर दिया मेरे को, ठीक है. I am into teaching profession with a blessing that I'll never grow old, because I'll always remain in the youngest lot. That is the reason that's what I'm in teaching. You have heard various dimensions, various thoughts that these panelists who have spent more than 15-20 years in professions, एक ने अपना प्रोफेशन अपने लेवल पे अलग से बनाया हुआ है, बाकी दो लोगों ने जॉब्स किए हुए हैं. वो डाइवर्सिटी लाने की कोशिश किए हैं हमने. जॉब्स हॉप भी किए हैं, अपनी अपनी वजह से हॉप किए हैं. उसमें से वो जो कुछ भी सीख, वो लेसन्स आपको पता चले, ये इस सेशन के पीछे का बेसिक उद्देश्य था. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप. Please don't misinterpret it. It has nothing to do with the personality development and all. ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जब हम नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं या नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहती है, हम हमारी प्रायोरिटीज़ कैसे कैसे रखते हैं, और जो काउंटर के दूसरे साइड पर लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है. वो जो गैप है, वो इट्स अ वाइड गैप. We just through this session wanted to identify that gap and bring it to your notice. आपको पता चले कि भाई ये होता है पगार, सैलरी एक्सपेक्टेशन. तो जो भाषा में सिखाया था उसको वो भाषा में बता दिया उसने कि भाई गलती करने के लिए तेरे को पैसे मैं दूं, ऐसी बताया था ना. यही भाषा में सिखाया गया उसको 25 साल पहले, 20 साल पहले. तो वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी भाषा अभी तक के भूले नहीं है इन लोग. ठीक है. और उनको मतलब बालफ्ज़ याद है जिस भाषा में बताया गया था. प्रोजेक्ट्स, लेट मी शेयर विथ यू अराउंड 2000s, मतलब अर्ली 2000 डिकेड जो था, उसमें ये ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स और मेजर और माइनर और ओजेटी ये सब करिकुलम में हुआ ही नहीं करता था. हमारे इंस्टीट्यूशन में हम पकड़ पकड़ के बच्चों को दौड़ाते थे और प्रोजेक्ट पे फेंक देते थे. क्यों रोहित? फेंक देते थे. वास्तु विजन से पहले आया कॉम्पेक्स. ठीक है. तो कॉम्पेक्स में हमारे 50-60 बच्चे सुबह से शाम तक के काम करेंगे. एक धेला नहीं मिलता था उनको, रुपया नहीं मिलता था. दिन भर अपना पेट्रोल जला के, अपना खून पसीना बहा के और वहाँ पर काम करते थे. अब ये लगन से यदि आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, ये सारी चीज़ें आप सीख पाते हो और अपने करियर को डायरेक्शन दे पाते हो. आई ऑलवेज से लर्निंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. नो वन कैन टीच यू इफ यू डू नॉट वांट टू लर्न. नो वन.
मैं सीखना नहीं चाहूँ तो मुझे दुनिया की कोई ताकत कोई चीज़ सिखा नहीं सकती। मैं सिर्फ वही सीख सकता हूँ जो मैं सीखना चाहता हूँ, बाकी कोई मुझे कुछ सिखा नहीं सकता। ये जो पूरा सिस्टम खड़ा होता है, वेदर इट इज़ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा सिस्टम क्या होता है, ये आपका लर्निंग इकोसिस्टम है। ये सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आने वाले हर्डल्स को रिमूव करना, मेकिंग इट मोर स्टूडेंट सेंट्रिक, making it more learner friendly. That is what is the objective of this system, not to teach you, because learning is a self driven exercise that has to come from within. वो अंदर से आए तो ही होता, नहीं तो एक क्लास में, एक ही कॉलेज में 40 बच्चे 50 बच्चे एक ही टीचर पढ़ाता है, अलग अलग रिजल्ट क्यों आते हैं? इट इज नॉट variation in mental abilities or intellectual abilities. I don't believe in that. It is a variation in the intent, the commitment. उसमें जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से परफॉर्मेंसेस में वेरिएशन दिखता है आपको। सैलरीज पहले 4 साल चाहिए क्यों आपको? यहां से शुरुआत करते हम, क्यों प्रदीप? यही से काय के लिए चाहिए पैसे? डैडी रिटायर हो गए? नहीं सर, अभी तो है, हाँ तो घर नहीं चलाना ना। वाई डू यू वांट सैलरीज? यू थिंक ऑफ व्हाट कैन आई डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले लिस्ट आउट करते हैं, उसके बाद में आती बाकी सारी चीजें। तो रेम्यूनरेशंस, कंपनसेशंस, बेनिफिट्स, इन सब के बारे में मिथ सही है। अभी कई देखता हूं मैं, 4-4 महीने में ये जनरेशन जॉब छोड़ रही है, 6-6 महीने में। मैं घर में भी ऐसे बच्चे, क्यों बेटा क्या हो गया, तकलीफ क्या है? पगार नहीं मिल रही, नॉट हैप्पी विद द सैलरी। यस, हैप्पी विद द सैलरी, देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मजा नहीं आ रहा काम करने, मजा नहीं आ रहा मतलब तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ ब्लडी मिथ, पार्डन माय लैंग्वेज, मिथ। No job satisfies you. Had job been satisfying you, you would have never been paid. आपको सेटिस्फाई करने के लिए यदि मैंने आपको नौकरी दिया हुआ है तो मैं आपको पगार अकेले दूंगा? मैं आपको पगार नहीं दूंगा। मैं तो आपको रखा ही वो काम करने के लिए हूं जो काम करना मुझे पसंद नहीं है। ये समझ लेना बेटा, इट्स वेरी हार्ड फैक्ट, वेरी हार्ड फैक्ट। 4-4, 7-7 किस्म के एडिशनल सर्टिफिकेशंस लेके जॉब ज्वाइन करते हैं, और वो जो इमीडिएट सुपीरियर रहता है वो बोल देता है पानी लेके आ करके। अब ये वो जब इंटर्न था तब बोला गया था, एम्प्लॉय नहीं था, और इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। अभी तो एम्प्लॉय को भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑफिस है मेरा, ठीक है, सामने पानी का ग्लास भरा हुआ रखा रहता है, बाजू में ऑल इन वन प्रिंटर रहता है जिसमें यू कैन स्कैन अ डॉक्यूमेंट, यू कैन फोटोकॉपी अ डॉक्यूमेंट, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, लेकिन साथ में एक बेल भी रखा हुआ है। 2 पेज की, अपनी केस बता रहा हूं मैं, 2 पेज की प्रिंट आउट निकालनी है, बेल बजाऊंगा, सिपाही आएगा, जा इसको फोटोकॉपी लेके आ। वो मन में बोलेगा बे रखा है पीछे, तो वो रखा है तो तेरे को भी तो रखा है, तेरे को क्या के लिए रखा है? दैट इज द फैक्ट। लेट अस फेस इट, let us accept it. Juniors are always given things or tasks which their superiors can do, but they don't want to do, they don't like to do. आप भी बड़े होंगे किसी दिन, आप भी यही करोगे। हमारे सीनियर्स भी ये करते थे, हम भी ये करते, ये चलता है बेटा, लेगेसी यही, ये चलता है। ये अपने अपने माइंडसेट में इम्बाइब कर लेना चाहिए, तो तकलीफें कम होती है। वर्क प्लेस है वो, घर नहीं है, उसने बोला ना मिथ है,
घर नहीं है वो। घर में नहीं झेलते हम अपने सिबलिंग्स को, वर्कफोर्स में कैसे झेलेंगे? 50 किस्म के टैंट्रम्स रहते हैं। गेटिंग योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, गेटिंग योरसेल्फ इम्यून्ड टू ऑल दीज थिंग्स is getting ready for your career. Take your career seriously. Do not take yourself seriously. अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं देना बेटा। वो मोटिवेशनल स्पीकर